देख रहे हैं उत्तर शक्ति न्यूज। Marathon, the face of this lovely event is here with us, Miss Didi Chand, an Indian professional sprinter, current national champion in women's 100 meter event, Summer Olympic Games. Welcome so much, Miss Didi Chand, ma'am, the ambassador for the Shakir Rusby Memorial Cancer Awareness Marathon, and along with them, we have our President, sir, Dr. Akhtar Hassan Rizvi Sahab, and along with her, the lovely Director of Rizvi Foundation, Advocate Mrs. Rubina Akhtar Hassan Rizvi, ma'am. Once again, welcome everybody to this fabulous day, fabulous press conference. This marathon occasion, who is joining us as ambassador. Since marathon is a sports event, we have invited her specially and we are honored with her presence. I welcome everyone from the media and thankful to them to cover this event and know in detail about the marathon, which is the 4th edition. I also welcome those guests present here. All the minute details of the marathon, right from the inception, have been worked out by Advocate Rubina Akhtar Hassan. I am sure she will explain in detail the beginning of the event and the past events, the success of the past events. And we welcome all of you. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उस पे आप हैशटैग किड कैंसर और हैशटैग रूमी केयर आप जरूर यूज कीजिए। और जो ये मैराथन है, हाफ मैराथन, जो फर्स्ट टाइम एवर हम हाफ मैराथन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, हेल्थ योरसेल्फ फाउंडेशन और रूमी केयर जो इस मैराथन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आई होप 5000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन इस बार हुई हैं। उनको पहले तो दिल से शुक्रिया बोलना चाहते हैं। यस यस यस, बननी चाहिए, तालियां तो बजनी चाहिए। यस प्लीज, बिकॉज़ वी आर अचीविंग माइलस्टोन डे बाय डे, और यही हमारी होप है कि जो हमने आई चूज होप जो हमने यहाँ पर यूज किया है स्लोगन, यही होप है हमारी कि कैंसर जैसी डेडली डिजीज सर और मैम के आने से पहले, हमारे फेस उत्तर के आने से पहले, एम्बेसडर के आने से पहले यही बात कर रहा था कि डर लगता है जब भी हम इस लफ्ज के बारे में सुनते हैं, तो डर लगता है। क्वेश्चन पूछिए, पॉजिटिव क्वेश्चन पूछिए, पॉलिटिकल एंगल में नहीं घुसते हैं, स्पोर्ट्स एंगल है उसको यहाँ पर हम बरकरार रखते हैं, और माध्यम जो हमारी भाषा का रहेगा वो हिंदी रहे, तो हमारे एम्बेसडर मैम आपके सवालों का जवाब और भी ज्यादा अच्छे अंदाज में दे पाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एंड आई ओपन द हाउस फॉर मीडिया क्वेश्चंस। 82. Apart from academic excellence and the cultural advantage, Rizvi Trust, Rizvi colleges are known for getting awards and promoting sports. Sports also we equally give importance, because there is general impression among the parents that you are going to the college, you study, and you don't waste your time actually in sports. But I am of the firm opinion, and I am sure everyone will agree, that sports is no more waste of time. It's a career. You make name, you make fame. So as with academic degrees, the students get the advantage of progress in life. The sports also bring them on the top of the world. Rizvi colleges and Rizvi Sports Club have produced
players, Ranji Trophy players, and bright students who have taken part in sports is the hockey, football, and many other games. I am happy to announce you have asked this question, otherwise it would have been irrelevant that you all have been invited and we are talking about ourselves. In cricket, we have been winning junior college and degree college. Apart from that, our school, which is well known, since last 15 years, Rizvi Sports Club, Rizvi colleges, Rizvi schools have been achieving the best result, and we are number one insofar as hockey is concerned, finalist. Insofar as football is concerned, we are finalists. And there are many sports. Rizvi Sports Club, Rizvi College of Arts Science Club, total 20-21 games खेलते हैं. So Rizvi स्पोर्ट्स का बहुत नाम है, बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स दिए हैं रिजवी ने, तो हमेशा ही रिजवी स्पोर्ट्स में आगे रहा और इंशाल्लाह और हम प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं. बट मैराथन इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट. मुझे ऐसा लगता है कि सारे स्पोर्ट्स जो है ना वो रनिंग से जुड़े हैं. अगर हमें क्रिकेट खेलना है तो वार्म अप के लिए हमारा कोच क्या कहता है, थोड़ा भागिए. अगर हमें जूडो करना है तो वार्म अप के लिए कोच क्या कहता है, थोड़ा भागिए. सो आई बिलीव इट इज़ द फर्स्ट स्पोर्ट्स. सो मैराथन इज नॉट ओनली जस्ट अ स्पोर्ट, इट्स अ वेरी गुड थिंग टू लिव अ हेल्दी लाइफ. हर 8 में से एक औरत को आज हो रहा है. तो जब हम मैराथन करते हैं तो हमारे मैराथन के ज़रिए हम बार बार इस्तेमाल करते हैं साकिब, रिजवी, कैंसर अवेयरनेस मैराथन. उससे जुड़िए. आप देखेंगे कि मेरा स्लोगन रहता है, आपने जो टिकट्स खरीदी हैं, जो रजिस्ट्रेशन किया है, हर पैसा वो चैरिटी में जाता है. बिकॉज रिजवी चैरिटी करता है, रिजवी को चैरिटी की कोई ज़रूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह. सो ईच पेनी दैट यू गिव वी सी टू इट. बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स आते हैं, कीमोथेरेपीज हो जाती है. कल अगर आप ग्राउंड पर रहेंगे तो आप खुद उनसे मिलेंगे. सो इसीलिए ये इनिशिएटिव लिया गया है ताकि वैसे रिजवी को अगर मैराथन कराना है तो रिजवी का 10,000 स्टाफ इंक्लूडिंग बच्चे और स्टाफ मिला के 10 से 12,000 है. ये सिर्फ हम मुंबई की बात कर रहे हैं. तो अगर इलाहाबाद, जौनपुर, करारी की बात करें तो आई एम श्योर BKC के 4 ग्राउंड भी पड़ेंगे मुझे. बट बाहर के रजिस्ट्रेशन हम ओपन करते हैं क्योंकि अपार्ट फ्रॉम आवर पीपल आई वांट ऑल अराउंड इंडिया टू नो इट, टू डू इट एंड टू कैरी इट ओवर. मैम ऑल्सो आपसे जानना चाहूँगा कि जो इनिशिएटिव आपने लिया है उसके साथ साथ मैराथन को लेकर बहुत सारी यूज़ की है. किसी भी इवेंट को बढ़ाने के लिए आपने किसी सिनेमा वालों को क्यों नहीं बुलाया? फिल्मी लोगों को बुलाइए. फिल्मी लोगों को बुलाने से मीडिया छापती है, फिल्मी लोगों को बुलाने से मीडिया लिखती है, फिल्मी लोगों को बुलाने के लिए आपका इवेंट बड़ा हो जाता है. बट मुझे ऐसा लगता है कि आई एम डूइंग इट फॉर अ कॉज. और मैराथन एक स्पोर्ट्स इवेंट है. अगर मैं स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को नहीं बुलाती हूँ और फिल्मी लोगों को बुलाती हूँ तो वो कितना स्पोर्ट्स से कनेक्ट हो पाएंगे ये मुझे नहीं पता. इसीलिए मेरी फर्स्ट चॉइस, अगर मैं स्पोर्ट्स इवेंट कर, मैं फिल्मी इवेंट भी ज़रूर करूँगी क्योंकि आप ज़रूर देखेंगे कि डॉक्टर क्या कहते हैं कि रिजवी फिल्म प्रोडक्शन आने वाला है बहुत जल्दी, जिसके लिए ज़रूर मैं आप लोगों को इन्वाइट करना चाहूँगी. अख्तर रिजवी फिल्म्स प्रोडक्शन एंड अख्तर रिजवी फिल्म्स एंड रूबी प्रोडक्शन इज़ ऑन द फ्लोर. तो ज़रूर वो फिल्मी दुनिया के लोग भी मुझसे ज़रूर जल्दी जुड़ेंगे. मगर ये एक स्पोर्ट्स इवेंट था और हम एक महिला एथलीट ढूंढ रहे थे क्योंकि जुटी मैम कॉमनवेल्थ में जाने वाली हैं और हमारे देश को रिप्रेजेंट करने वाली हैं. तो मैं चाहती थी दिल से और सिंसियरली वो हमें ज्वाइन करें.
and it was very easy for me to approach her. It was a humbleness that just with one request. वैसे आप वैसे मेरा एक्सपीरियंस है, जब भी मैंने किसी खिलाड़ी को अप्रोच किया है मेरे लिए बहुत आसान हो गया। हमने जो हमारे स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं मिस्टर आमिर, उनके साथ हमने एम्स में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमने अपने आप को रजिस्टर किया है। और फिर हमें ये पता चला कि 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर को रेस कहते हैं मैराथन में। मैराथन करने के लिए हाफ मैराथन होना ज़रूरी है, दैट इज़ 21K। तो तब हमने डिसाइड किया कि हम इस बार पहली बार 21K करेंगे, फिर इंशाल्लाह फुल मैराथन करेंगे। सो इट वॉज ईजी फॉर मी। मगर जैसे ही हमने लास्ट 3 मैराथन में 2 मैराथन्स में कैटेगरीज रखी थी, क्योंकि महिलाएं भी दौड़ती हैं, भले ही वो मर्दों से फास्ट नहीं दौड़ती होंगी, मगर मर्दों से फास्ट भी एक दौड़ती है। सो इसीलिए बहुत सारी कैटेगरीज हैं और हमने कैटेगरी, क्योंकि कहते हैं ना कि कैटेगरी इसीलिए क्योंकि एक छोटा बच्चा, जैसे मैंने ओपन मैराथन रखा है, कोई कैटेगरी नहीं रखी है, तो बच्चों को हम क्योंकि ये एक रिजवी का एक मैराथन है जहाँ पे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे भी दौड़ते हैं, तो उनको कैटेगरी वाइज हम अवार्ड देना चाहते हैं, क्योंकि रिजवी को सबको खुश करना है। आंसर टुवर्ड्स इट, नो ऑफेंस प्लीज। वैसे आई डू रिस्पेक्ट द मेल्स बिकॉज आई डोंट बिलीव इन फेमिनिज्म। मुझे ऐसा लगता है कि आदमी में एक अलग किस्म की क़ुव्वत होती है जिसे अल्लाह पाक ने दिया है। सो उसे हम डिस्टर्ब नहीं करके, उनके कॉम्पिटिटर्स नहीं बनकर अगर हम कंपेनियंस बने रहें तो शायद हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी, डू नॉट हिट द मेल ईगो and do not try to be the competitor. Just be companions to them. It's going to be always easy. Yeah, because God has given them that prestige. Let it be there. So मेरे लिए तो यही है। But जब मैंने मैराथन का डिसीजन लिया and I met a company, I will not name them. It was just 2 months and they told me कि मैडम 2 महीने हम तो बड़ा मैराथन करते हैं, आप कैसे कर पाएंगे? भले ही आपके पास रिजवी का स्टाफ हो, वो तो टीचर्स हैं, नाइव है बहुत, सिर्फ टीचर्स की टीम को लेके आपको मैराथन करना है। मैराथन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, साल भर लगते हैं, उसके मेडल्स बनाने पड़ते हैं, टी-शर्ट बनाने पड़ते हैं, बहुत कुछ, बहुत डीमोरलाइजेशन मुझे फील हुआ कि आप तो एक महिला हैं, यू नो, बड़ी बड़ी कंपनीज ऑर्गेनाइज करती हैं। तो आई सेड कम अगेन, बड़ी बड़ी कंपनीज ऑर्गेनाइज करती है, आई सेड कम अगेन। उसके पहले क्या कहा आपने? बड़ी बड़ी कंपनी, ऐसे में उसके पहले क्या कहा? तो बोले, मैंने कहा कि महिला। ऐसे सर, अगर महिला मर्दों से डरती तो मर्दों को पैदा ही नहीं करती। हम चांद पे पहुंच गए, फिर भी आप हमारे एम्पावरमेंट की बातें करते हैं। ठीक है, आप उठिए और जाइए, मैं आपको मैराथन के दिन मिलूंगी और इंशाल्लाह आप ही फ्लैग होस्ट करें और फ्लैग ऑफ करें। तो साहब चले गए, बट मेरे लिए भी एक चैलेंज था। और शायद जिन लोगों ने देखा है रिजवी फर्स्ट मैराथन, वो इस बात के गवाह हैं, YouTube इस बात का गवाह है। आप ज़रूर घर जाइए और देखिए, एक महिला होने के बावजूद, और ये आप कहते हैं ना नाइव टीचर्स नाइव नहीं होती, वो दी टीचर्स होती हैं। आज मैं एक लॉयर हूँ तो अपने उस्ताद की वजह से, आज आप प्रेस हैं तो आप अपने उस्ताद की वजह से। तो उस्तादों का एक अपना मर्तबा होता है, तो उनको लेकर ही मैंने फर्स्ट मैराथन किया, जिसमें आई थिंक सो मोर देन, तभी भी 5000 लोग थे। सेकंड किया तो भी बहुत लोग थे। थर्ड तो ऑनलाइन था तो भी बहुत लोग थे, बहुत लोग ऑनलाइन जुड़े। अब फोर्थ में तो आप खुद ही गए। All across the country, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसमें गवर्नमेंट जो ये लीग है मैराथन की, उसमें शी इज द ओनली विमेन। तो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राउड ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस इनिशिएटिव। इसमें मैं सीख रही थी। दूसरे मैराथन में मैंने बहुत कामयाबी हासिल की। तीसरा मैराथन क्योंकि मैं कर नहीं पाई, ऑनलाइन था, तो आप सबको बता दूं कि हमने कार्डियक एम्बुलेंस रिलीज किया है। थर्ड मैराथन में
जो कि रिजवी कॉलेज के अंदर इसी प्रीमाइसेस में ऑनलाइन था। बहुत दिग्गज लोग जुड़े थे फ्रॉम ऑल दी वॉक्स ऑफ लाइफ, अफगानिस्तान एम्बेसडर से लेके पॉलिटिशियन से लेके पुलिस सब जुड़ी थी हमारे साथ में। उसको इनॉग्रेट करने के लिए राज ठाकरे जी की वाइफ खुद शर्मिला ठाकरे जी आई थी उस एम्बुलेंस को इनॉग्रेट करने के लिए। सो इट वॉज अ गुड इनिशिएटिव, क्योंकि कैंसर अवेयरनेस पे हम रिसर्च करते रहते हैं और कोरोना के वक्त वैसे भी LPSL फाउंडेशन जो रिजवी ग्रुप का इनिशिएटिव है बहुत कुछ कर चुका था। राशन बांटने से लेकर लोगों की घर घर जाके मदद करने से लेकर हमने बहुत कुछ कर दिया था। बट उस दौरान मैं ये देख रही थी कि एम्बुलेंस की काफ़ी दिक्कत थी, स्पेशली कार्डियक एम्बुलेंस की। Cardiac ambulance was not easily available. When Dr. Rizvi was hospitalized that time, not with corona, but with a minor heart attack, that time मुझे 1 से 1.5 घंटा लगा कार्डियक एम्बुलेंस अरेंज करने के लिए। तो जैसे ही डॉक्टर रिजवी साहब हॉस्पिटल से आए, हम दोनों का एक ही स्टैंड था कि हम कुछ नहीं करेंगे, इस बार हम फुल्ली इक्विप्ड कार्डियक एम्बुलेंस रिलीज करेंगे और वो उसी दिन होगा कैंसर अवेयरनेस डे के दिन, जो होता है 4 फरवरी को। मगर इस बार मैं 4 फरवरी को नहीं कर पाई क्योंकि कोरोना के पैंडेमिक की वजह से गवर्नमेंट की परमिशन नहीं मिली। बट जैसे ही मुझे परमिशन मिली, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ आपसे कि अपार्ट फ्रॉम मैराथन, अपार्ट फ्रॉम दिस इवेंट, हम कैंसर अवेयरनेस की बातें करते हैं, तो आपको बता दूँ कि अपार्ट फ्रॉम दिस इवेंट हैज बिकम अ फंड रेजिंग इवेंट, जहाँ पर रिजवी Education Society, Rizvi Builders, the whole Rizvi group with LPSL Foundation has come up with an initiative of introducing a bus which is known as cancer awareness, cancer screening bus. कैंसर स्क्रीनिंग बस, इसीलिए बहुत सारी कैंसर स्क्रीनिंग बस है, टाटा वालों के पास है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने, एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट्स ने इंट्रोड्यूस किया है। बट जब हम देख रहे थे कि क्या नई चीज़ आई है, सो टोमोसिंथेसिस करके एक नई टेक्नोलॉजी आई है जो ब्रेस्ट को 3D इमेज से और इमीडिएट विद इन 24 आवर्स रिजल्ट देती है। तो वो बस हम लाना चाह रहे हैं। डॉक्टर रिजवी के माध्यम से 50 लाख का हमें डोनेशन मिला है, थैंक यू सर। एंड मोर इट्स द बस इज कॉस्टिंग अस मोर देन 1 करोड़, सो दैट इज वाई ये रजिस्ट्रेशन हैं टिकट्स के। ईच पेनी इज गोइंग टू गो फॉर दिस बस एंड आई एम श्योर जब भी वो बस ऑल ओवर मुंबई, ऑल ओवर महाराष्ट्र चलेगी और आपकी नज़रों के सामने से गुजरेगी, आप ये खुलकर कहना और ज़ोर से कहना कि इस बस में मेरा भी कंट्रीब्यूशन है। मैंने भी रजिस्टर किया था और मैं भी दौड़ी थी, क्योंकि ये बस सिर्फ आप लोगों के साथ से और आप लोगों की कोशिश से और मेरी कोशिश से ये बाहर आए। कोई आसान चीज़ नहीं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ऑल्सो एंड द स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स ऑल्सो do not provide sufficient budget to promote sports. Now university means it's not a building, the RCC structure. The infrastructure requires quite a lot of things and it requires expert to coach and train. All this is not possible in today's time, and I pray that it come up in future to see that actually your suggestions actually are doing right. But we taking part in 20 sports have proved ourselves that it may be called as a mini university of sports. For all the colleges affiliated to Mumbai University, more than 700 to 800, and every year since last 10 years in grades in Mumbai University, Rizvi colleges are number 1. So it is a mini university for sports which use encouragement, which also draws inspiration to other colleges and institutes to participate that way and promote. पहली बार है
बिकॉज जब भी हम मैराथन या जब भी मैं खुद भी जब ट्रेडमिल पे, अक्सर तो नहीं होता है ऐसा, नॉट फिट लाइक मौका नहीं मिलता है, बट जब भी ट्रेडमिल पे हो या नीचे, आई लव वॉकिंग। तो whenever I walk, I love to listen music. तो मैं चाहती थी कि रिजवी का एक ऐसा मैराथन एंथम हो कि जब भी कोई भी मैराथनर या कोई भी एथलीट जब भी चले या दौड़े वो एंथम गुनगुनाए, सुने और उस रिदम के साथ में अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। तो रिजवी एंथम का नाम है जज्बा, क्योंकि जीने का जज्बा भी है, कुछ करने का जज्बा भी है, लड़ने का जज्बा भी है, लोगों से नहीं मगर उस बीमारी से। सो इसीलिए उस रिजवी एंथम का नाम जज्बा है, जिसको अनीश मैथ्यू जी जो आप लोगों के सामने हैं, उन्होंने गाया है, कंपोज किया है और बहुत सुरीली आवाज़ में इसको कंपोज किया है। आई एम श्योर इट इज़ बीइंग रिलीज नाउ, सो yes, you are really going to enjoy and it's going to be a lifetime marathon for us. इसे कहते हैं रिजवी मैराथन जज्बा। वो सारे बच्चा खुद का टैलेंट दिखाने के बाद उनको दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन ये जो रूरल एरिया में जो कॉम्पिटिशन होता है, जैसे मैराथन हो रहा है या कुछ छोटा मोटा कॉम्पिटिशन होता है, इसी में बच्चा टैलेंट हम ढूंढते हैं, इसके अंदर टैलेंट है, इसको ढूंढ के निकालते हैं। फिर बस इसके बाद टैलेंट होने के बाद इसको अच्छा ट्रेनिंग दिया जाता है, फिर गवर्नमेंट सेक्टर में कितने स्कीम इसको प्रोवाइड किया जाता है। तो मैं भी बचपन में जब मैं स्कूल लेवल में रनिंग कर रही थी, मेरे पास टैलेंट था, लेकिन जिसको पता नहीं चला था कि बुटीक के पास टैलेंट है करके। स्कूल लेवल में जब मैं क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में अच्छा प्रदर्शन किया, मैं साल भर प्रदर्शन अच्छा करके चैंपियन बन गई। फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट का सेक्टर से मेरे को सारा सपोर्ट मिला, फिर मैंने आज मैं इतना बड़ी एथलीट बन पाई। तो ऐसे कॉलेज तरफ से जो मैराथन हो रहा है या स्पोर्ट को प्रमोट कर रहे हैं, देखो हर चीज़ को हमें प्रमोट करते हैं। पढ़ाई में लाखों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स के में पढ़ाई से ज़्यादा पैसा खर्च होता है, लेकिन स्पोर्ट्स में ज़्यादा खर्च होता है खुद का डाइट के ऊपर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के ऊपर, और जाना आना, वहाँ कंट्री का जो ट्रेनिंग सेंटर जाना, कॉम्पिटिशन लड़ना, बहुत पैसा खर्च होता है। खुद का फिजियोथेरेपी रखना, कोचेस रखना, तो ये सारा एक एथलीट बियर खुद नहीं कर पाते। तो ऐसी बड़ी बड़ी जो अनुष्ठान होता है वो प्रोवाइड करते, सपोर्ट करते हैं। इनके बगैर आज बहुत सारे एथलीट देश विदेश में नाम कर रहे हैं। जैसे मेरे को मेरे जो इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करो TIT यूनिवर्सिटी, वो मुझे 7 साल से सपोर्ट कर रहा है। तो काफ़ी ये इस कॉलेज का अनुष्ठान भी, फंक्शन भी बहुत काफ़ी बच्चों को सपोर्ट किया। मेरे आने के टाइम में जो बोल रहे थे, सुना मैंने कि काफ़ी क्रिकेट लोग इधर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब कॉलेज से बिलोंग कर रहे हैं। बहुत काफ़ी बच्चों को हॉकी से लेके जूडो से लेके काफ़ी बच्चे इधर सपोर्ट मिल रहे हैं इनको। तो इनके वजह से देश में बहुत सारे इंटरनेशनल बच्चा मिला है और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे अनुष्ठान है जो वो प्रमोट करेंगे तो काफ़ी बच्चे आएंगे जिसका नाम रोशन करेंगे।